The last series that we have done was 333, 3333, and so on, right? And when we were finishing off the class, I have asked that which out of these two is correct. Okay, and finally we came to know that both are correct. If you want me to revise it, I can revise it, otherwise we can go further. चलो इसको फिर दोबारा से पढ़ते हैं एक बार. Okay, so let's talk about the series. The series says the terms are, let's change it. n terms. Okay, कोई डिफरेंस तो होगा नहीं, वहाँ 3 था या 2 हो गया. ओके, अब सबसे पहली बात, जब भी हम किसी सीरीज को n टर्म्स के लिए बनाते हैं, यस, जब भी हम किसी सीरीज को n टर्म्स के लिए बनाते हैं तो हमारे जो सीरीज है वो n टाइम्स चलती है, यानी हमारा जो लूप है ये चलता है n टाइम्स. ऑलराइट, अब हमने क्या किया, हमने ये माना कि ये जो 2 है ये बेस टर्म है. हमने क्या माना, 2 जो है बेस टर्म है, तो हमने ले लिया बेस इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2, और एक फॉर लूप चला दी. n तक, और क्योंकि ये बेस टर्म है इसलिए इसको पहले ही प्रिंट कर दिया. ऑलराइट, b को हमने पहले प्रिंट क्यों किया, गुराशीष के बराबर वाले. गुराशीष के बराबर में कौन है, व्हाट्स योर नेम. वी हैव शोन द बेस फर्स्ट, then we have found out the calculation, the relation. So the new value of b will be b into 10 plus 2, and this is done. But the point is, b is really the base term or it is also a calculated term. If I consider the base term as 0 and multiply it by 10, so how much, 0 into 10 plus 2. It means in spite of having b as 2, I am not saying b anything, I am saying k is equal to 0, and I am again running the for loop. Alright, now I have to formulate the term first, so I have given the formula first, then I have printed k. K is initially 0, multiplied by 10, it will be 0 only, plus 2, so it will be 2. Alright, next time k has become 2 into 10 plus 2, 22. What is the new value of k now? 22 into 10, 220 plus 2, so the new value of k is 222 now. Again multiplied by 10, 2220, add 2 to it, it will be 2222. Now this is the next program. I always tell my students that whenever I am writing a program, a new program that is somehow related to the previous one. So, do you think this is somehow related to the previous one?
1 2 3 4 और आई में जो हमने एन लिखा था बाय डिफॉल्ट स्टार्ट स्टेप क्या होगा by default 0 and minus 1 because nothing has been given, so start from 0, and since n has been written, so it will go up to n minus 1. Yes, last term into 10 plus last term 0, this वाला, ये वाला idea, last term 0 into 10 कितना हुआ, क्या जोड़ना है, +1 जोड़ना है, हर बार +1 जोड़ना है, नहीं तो पहले क्या जोड़ना है, फिर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो, देखो और बताओ, पहले 1 रही हो, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, कोई ऐसा वेरिएबल कोई है ऐसा, आई, ओके, एज यू पीपल आर सेइंग आई एम मेकिंग इट आई, check the work is done or not. This solution belongs to this question. What is initial value of k? 0 into 10 plus I. I is that time 0. That time I is 0. How can I make it 1 for this instance? Can I write this? I is 0. I have added 1 to it, so it has become 1. That is also right. You are saying in spite of starting it from 0 to n minus 1, we can run it from 1 to n plus 1. So in that case, we need not to add 1 to it. Right. चलो पिछले प्रोग्राम में चेंज नहीं करते, अपना नया बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए फॉर आई इन रेंज 1 को हम कॉमा n प्लस 1 किया और n की वैल्यू मान ली हमने यूज़र से ले लिया और k की वैल्यू हमने डाल दी 0, तो ये बना k इज इक्वल टू k इंटू 10 प्लस आई एंड प्रिंट k। अब इसका ड्राई रन देखते हैं। ये थोड़ा तेज़ी से हो गया क्या, मतलब समझ में नहीं आया, ये प्रॉब्लम है तो मुझे बताना बेटा, भी फिर आगे निकल जाएंगे तो फिर दोबारा एक्सप्लेन करना भारी हो जाता है। हमने क्या किया है, इसमें और पिछली सीरीज़ में अंतर क्या है पहले ये समझ लो। लास्ट सीरीज़ में कांस्टेंट 2 आ रहा है बाद में सब में, देखो 1 इंटू 10 10 प्लस 2 120 इंटू 10 प्लस 2, बाद में 2 जोड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पे आने वाली आखिरी डिजिट 2 नहीं है, वो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो वो कंसेक्यूटिव है, वो सीक्वेंस में बढ़ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर आई जोड़ा है। 1 इंटू 10 प्लस 2 12, 12 इंटू 10 प्लस 3 123, 123 इंटू 10 प्लस 4, every time we are increasing the value which is being added actually, so that's why we are adding this। तो यहाँ पे हमने आई इसलिए लगाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोगों को करना है। x 2x स्क्वायर 3x क्यूब 4x टू द पावर 4 5x टू द पावर 5 सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये मुश्किल क्वेश्चन है, सोच समझ के करें।
रिमाइंड करा दूं, इसके जैसी एक सीरीज आप लोग कर चुके हैं, ये आप कर चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन इजी लें कि मुश्किल ले लें? थोड़ा सा इजी। चलो लिखो नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट कॉमन डिविजर्स ऑफ टू नंबर्स। Write a program to print common divisors of two numbers. Tell me the answer if numbers are tell me the answer. A24, B40. Common divisors are 1, 2, 4, 8. That's it. कैसे निकाला? फैक्टराइजेशन किया जैसे दो दो करके करते हैं, या वैसे निकाल दिया? ओके, कुछ ऐसा किया कि 1 दोनों को डिवाइड करता है या नहीं करता है? करता है तो 1 बना मान लिया, ऐसे ही किया ना? पता है यही सही तरीका है, वो मैथ्स वाला तरीका तो गड़बड़ है। कोई सोचता है वैसे? कोई भी नहीं सोचता। ओके, सो 1 से डिवाइड होते हैं दोनों, 2 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं, नहीं होते हैं, 4 से होते हैं, फिर 8 से होते हैं, उसके बाद किससे नहीं होते। अच्छा, कहाँ तक चेक किया तुमने? 8 के बाद तुम रुक गए, 12 तक चेक किया, और अब कहाँ तक चेक करते? अगर ये 48 होता तो तब भी 12 तक ही करते हैं। अगर ये 48 होता तो 48 में भी 12 तक ही करते, तब तो गलत निकलता आंसर। 24 तक निकालते ना, फिर 24 अपना फैक्टर तो होता ही है ना, कॉमन डिवीज़र तो है ही ना 24, दोनों का कॉमन डिवीज़र है। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कॉमन डिवीज़र होते कहाँ तक हैं? 1 से शुरू होते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन होते कहाँ तक हैं? छोटे वाले नंबर तक होते हैं। यानी हमें 1 से लेकर के छोटे वाले नंबर के बीच में वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जो दोनों को डिवाइड कर सके। क्लियर? हमें 1 से लेकर के छोटे वाले नंबर तक के बीच में उन नंबरों को फाइंड आउट करना है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम 2 नंबर मांगेंगे यूज़र से। मेरे साथ करो बच्चों। मुश्किल है ये? अगर ये मुश्किल है तो तुम्हारा भी मुश्किल है आगे चलना। चल अगला वाला आसान दूंगा, सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है? 3 दूंगा। चलो ओके, अब इन दोनों में से छोटा निकालना है हमको, कौन है? तो बहुत दिनों बाद ये क्वेश्चन
आसान वाला, इफ ए इज लेस देन बी, स्मॉल इक्वल टू ए, एल्स स्मॉल इक्वल टू बी। ये तो आसान है यार। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? अब हमें कॉमन डिविजर्स ढूंढने हैं, कहाँ से कहाँ तक? स्मॉल से 1 या 1 से स्मॉल, या एक ही बात है? एक ही बात है। हमने एक फॉर लूप चलाई, वन से लेकर के स्मॉल तक चलानी है। एन तो गलत लिख दिया शायद मैंने, क्या लिखना चाहिए? स्मॉल प्लस 1। कॉमन डिवीजर का मतलब वो किस किस को डिवाइड करे? ए को बी, बी को बी। क्या कंडीशन बननी चाहिए? इफ ए मॉड आई इक्वल टू 0 एंड बी मॉड आई इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करे। तो क्या करना है? उसको गिनना है कि प्रिंट करना है? ए को, बी को या सी को? किसको प्रिंट करना है? ए को, बी को या सी को या किसी और को? आई को प्रिंट करना है, ठीक है? एंड आई थिंक दिस इज डन। वन आएगा, वन तो आएगा ही आएगा। इंडेंट लिख दूं इसके? 0 1 0 1 0 1 2। बच्चों अब क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं इसको चेंज कर दूं? ये नोट कर लिया ना सब बच्चों ने? नोट कर लिया पीछे बॉयज़? अब क्या फ़र्क पड़ेगा? स्मॉल 0 -1। पहले जो आंसर आ रहा था आपका 1 2 4 8, अब वो आ जाएगा 8 4 2 1। ठीक है बच्चों? एक और बताएं? ओके, देखो पहले जो हमारी लूप चल रही थी वो चल रही थी 1 से लेकर के स्मॉल प्लस 1 तक। इसलिए सबसे पहले 1 की डिविजिबिलिटी चेक की जा रही थी, ए और बी को डिवाइड कर सकता है कि नहीं, और वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रही थी, तो पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8, इस तरह से आंसर्स आए हमारे पास। अगर हमने इसको उल्टा कर दिया, स्मॉल से 0 चलाया -1 के साथ, मतलब घटते हुए चलाया, तो सबसे पहला डिविजर कौन सा चेक हुआ होगा? 24। सबसे पहले कौन सा चेक हुआ होगा? 24। 24 दोनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा, कहाँ पे आके रुकेगा सबसे पहले? ये 8 पे, राइट? और 8 सबसे पहले डिस्प्ले होगा। इज दैट ओके? अगर मैं इसके बाद ब्रेक लगा दूं एक, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे? क्वेश्चन बताओ क्या बनेगा? अगर मैं प्रिंट आई के बाद ब्रेक लगा दूं तो क्या दिखाई देगा? सिर्फ 8। विल इट बी द हाईएस्ट कॉमन डिविजर?
So if you have to write the next program is easy ना, अब तो next program easy है. Write a program to print highest common divisor of two numbers. समझ में आया? किसको लग रहा था मुश्किल? तुझे? अब तो आसान है कि नहीं है? अब भी मुश्किल है, कह दे कोई नहीं, उससे भी आसान दे दूंगा फिर अगली बार. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है